गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ स्टूडेंट्स। और जीडी क्लासेस के इसी क्रम में आज अपना टॉपिक है विमेन एम्पावरमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज विमेन एम्पावरमेंट। Women's improvement leads to a process through that women can be empowered with special efforts by a society, country, or world. Women empowerment can be understood in many ways, but as we talk about women's empowerment, empowerment means giving freedom of decision, freedom of expression, freedom of privacy, and to give freedom to women to participate equally in all the field like men do. Women empowerment is one of the most crucial issues to be talked about, as when women are empowered in a country, it brings overall development for a country, as a country can make the most of its people and skills and efficiency. It can get faster development for a country rather than a country where the situation of women is quite backward or they are suppressed. तो एक तरह से महिला सशक्तिकरण जिसकी हम बात कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक है उसके तहत हम देख सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो ये कहती है कि समाज, देश या दुनिया द्वारा विशेष प्रयासों के साथ महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है। लेकिन जैसा कि हम महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं तो ये बताता है कि उन्हें स्वतंत्रता देना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना, निजता की स्वतंत्रता देना, निर्णय की स्वतंत्रता देना आदि सभी चीज़ें हैं जिसके जरिए हम महिलाओं को सशक्त बना सकते हैं और उनके लिए एक अच्छा माहौल उनके लिए तैयार कर सकते हैं। और जब एक देश में सभी सिटीजन्स योगदान देते हैं उसके विकास में, तभी एक देश समग्र रूप से विकास कर सकता है और अच्छे स्तर पर वो अपना लेवल बना सकता है। Why women why women empowerment is so important? In some societies, women still face discrimination on their gender basis. They are not given the same rights and freedom as men. They are still paid less, expected to cook, clean, etc. Women are still bounded by their culture and family, as women can't go outside freely at night. She has she is sent with the family members or any known one. Some women are forced, even by their parents or husband. They still don't have permission to work or study far away from their home or in other city or town because they have a thinking or misconception that women are not strong as men. Some women get married in young age and some also forced to married by their parents. In many cases, women have to quit their jobs and study after getting married as they don't get supportive atmosphere in their in-laws family as they used to get before marriage from their parents. तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वुमेन जो एम्पावरमेंट है उसको लेकर एस्पेक्ट हमारे यहाँ देश में देखने को मिलते हैं। कुछ समाजों में महिलाओं को अभी भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें लिंग के आधार पर पुरुषों के रूप में समान अधिकार और स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। उन्हें अभी भी कम भुगतान किया जाता है। खाना पकाने, साफ करने आदि की अपेक्षा की जाती है। महिलाएं अभी भी अपनी संस्कृति और परिवार से इस तरह से बंधी है कि वह स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं जा सकती या उन्हें फैमिली मेम्बर्स के साथ भेजा जाता है। महिलाओं को कई बार उनके माता पिता या अपनी फैमिली मेम्बर्स के द्वारा ही कई तरह से नियंत्रित किया जाता है कि वो अपना डिसीजन ले सकती, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो उनके व्यवसाय से रिलेटेड हो। और कई बार ये भी देखने को मिलता है कि आफ्टर मैरिज, शादी के बाद उन्हें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने का मौका नहीं मिल पाता है और बहुत सारे चेंजेस उनकी लाइफ में आ जाते हैं जो उन्हें उनकी स्टडी से दूर कर देते हैं। They are not empowered by their families or husband or by any other member due to its claim that the women are not better in study or work outside their home, but they still fight and join us these programs as the result of empowering. Those women are really changed in their life. They can earn more money to support their families. They can get happiness in their family as they don't have domestic violence and they have learned other lessons related to their living life. Women empowerment is really need of time for healthy developed societies. It is so important for women or to bring them into mainstream of society. तो ये बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं को भी समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाए, उन्हें समाज में बराबर अधिकार मिले, सभी तरह के कार्य करने की उन्हें स्वतंत्रता हो, अपने लिए वो निर्णय ले सकें और समाज में एक
सकारात्मक भूमिका निभा सके। लेकिन ये तभी संभव है जब उन्हें सभी तरह से सशक्त बनाया जाए, उन्हें हर तरह की सुविधा, उन्हें हर तरह की आज़ादी, उन्हें हर तरह की फ्रीडम और निर्णय लेने की आज़ादी दी जाए, ताकि वो अपने लिए कुछ कर सकें, ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके और देश के विकास में भी योगदान दे सकें। Empowering women is to provide all the right to women so they can have equal right to take part in education, society, economy, politically, or in any other activity like sports. Women can involve in society as they are happy to have choice for their likes and dislikes, work, attire, and other activities. Women are given permission to get higher education as men. They also can get the high level of education or any other professional course. They can finish their class, they learn the skills, and they study whatever they want wherever they want. Women can also join the politics as they have right to vote and do some activities in political. So they can also play a positive role for the nation. Recently we have seen so many examples of their significant role in politics too. तो ये कह सकते हैं कि सभी तरह के क्षेत्र महिलाओं के लिए आज खुले हुए हैं। सभी तरह के क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकती है, चाहे वो खेल हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो समाज में निभाया जाने वाला उनका सकारात्मक किरदार हो। ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें वुमेन आज आगे नहीं है। आज सभी तरह की फील्ड्स में ये कह सकते हैं कि औरतों का अपना एक वर्चस्व है। सभी तरह की पद पर वो पहुंचती है और उन पदों पर अच्छी तरह से अपनी भूमिका का निर्वाह करती है। तो ये बताता है कि उनमें किसी तरह की स्किल, गट्स की कमी नहीं है। समाज ही या कह सकते हैं परंपराओं के आधार पर जिस तरह का जो भेदभाव देखने को मिलता था, वाकई में उसका कोई बेस है नहीं। लिंग पर आधारित जो भेदभाव देखने को मिलते थे, आज ये कह सकते हैं कि वुमेन ने प्रूव किया है हर तरह की फील्ड में आगे बढ़कर कि इस तरह का पार्शियलिटी, इस तरह का भेदभाव सिर्फ समाज के कुछ संकीर्ण सोच वाले लोगों तक की सोच है, बाकी उनमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। Women empowerment is a part of promoting women to make them feel they are strong enough to do the work what they want to do, and they can handle and manage the situation on their level with their guts. Women can work outside for their home once they are given opportunity to make up their mind. Women are not dependent on men. They also can earn money to support their family financially by working through their abilities. Even we can see their significant role in every type of field as they are getting every kind of position from a homemaker to chief minister, from a teacher to an IAS और IPS। तो हम देख सकते हैं कि महिलाओं ने सभी तरह की भूमिकाओं का निर्वाह किया है। अगर उन्हें स्वतंत्रता दी जाए, अगर उन्हें मौका दिया जाए, तो वो सभी तरह की पोजीशन तक रीच कर सकती है, पहुंचती है और बाकायदा अच्छी जिम्मेदारी के साथ उन पदों को निभाती भी है। और ये कह सकते हैं कि इस तरह जब महिलाएं आगे आती है तो अपने आप ही देश के लिए एक सशक्त भूमिका निभा सकती है और देश के विकास के लिए योगदान दे सकती है। और आज ऐसी कोई फील्ड नहीं है जो इसमें वुमेन नहीं है, चाहे वो सीएम का पद हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो। छोटे से छोटे वर्क से लेकर बड़े से बड़ा वर्क आज महिलाओं की पहुंच में है। We can see a mentality in our society where some women are not confident, they are not given confidence to work in a tough condition or a high position because they are imposed the narrow mentality of some people. They are just some particular type of work like teaching or receptionist are suitable for them, their personality or aptitude. It's quite wrong as many of women have proved they can do a lot of work for the nation. They can become a political leader or they can join defense or join any field ऑन एनी लेवल। तो ये कह सकते हैं कि एक भूमिका, एक सीमितता का जो दायरा उनके लिए बना दिया गया है, या अभी भी कुछ समाज में कुछ लोग उनके लिए एक सीमित दायरा बना देते हैं जहां उनके लिए कुछ व्यवसाय ही सही बताए जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं महिलाओं के लिए कहा जाता है कि टीचिंग उनके लिए अच्छी प्रोफेशन है, या ये उनके लिए बनी है, या फिर इसी तरह की फील्ड में उन्हें जाना चाहिए, या एक रिसेप्शनिस्ट, या कुछ लिमिटेशन के साथ उनके लिए कार्य की भूमिका बांध दी जाती है जो कि सही नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि उनमें किसी तरह की कोई स्किल नहीं है, किसी तरह की कोई स्किल की कमी नहीं है। आज सभी तरह की गट्स, कैलिबर, इंटेलिजेंसी, या ये कह सकते हैं कि माइंड लेवल उनका देखने को मिलता है। इसी कारण सभी तरह की फील्ड्स में हम देख सकते हैं कि महिलाओं ने अपना वर्चस्व स्थापित किया है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पद हो, या सभी तरह की लेवल पर महिलाएं आज देखने को मिल सकती है। Women empowerment also helps to reduce in domestic violence. Do people promote and give the value to women?
women are not tortured by any factors such as sexual abuse, emotional abuse and physical abuse. तो महिला सशक्तिकरण भी घरेलू हिंसा को कम करने में मदद करता है, क्योंकि लोग महिलाओं को आगे आने के लिए बढ़ावा देते हैं, उन्हें मूल्य देते हैं। महिलाओं को भावनाओं के दुरुपयोग, शारीरिक शोषण जैसी किसी भी कारण द्वारा उनका प्रताड़ित या उनको उत्पीड़न अब नहीं किया जा सकता। There are some laws and schemes that also help to empower women in India. If we talk about the laws first, here are some laws and government scheme to empower women in India. The Prohibition of Child Marriage Act 2006. The Prohibition of Child Marriage Act was made effective in 2007. This act defines child marriage as a marriage where the groom or the bride are underage, that is, the bride is under 18 years for age or the boy is younger than 21 years. Parents try to marry underage girls are subjected to action under this law. This law makes these marriage illegal. तो यहाँ कुछ कानून हैं जो महिलाओं सशक्ति या महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं देश में। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, इसके तहत 2007 से इसको प्रभावी किया गया है। यह अधिनियम बाल विवाह को एक विवाह के रूप में परिभाषित करता है जहां दूल्हा या दुल्हन कम उम्र के होते हैं, अर्थात दुल्हन की आयु 18 से कम और लड़का अगर 21 वर्ष से कम है। माता पिता द्वारा कम उम्र की लड़कियों से शादी कराने की जो कोशिश की जाती है, इस कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। यह कानून इन विवाहों को अवैध बनाता है। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। There is still a problem like a dowry in India, as people do it hiddenly in some way, or they follow this trend to show social status. According to this act, give and take of dowry at the time of the marriage to the bride or the bridegroom and their family is to be penalized. Dowry system. Give and take of dowry is a system in India. Dowry is often asked of the bride and her family by the groom and his family. The system has a strong root, so it could not be removed completely. Because of the women are tortured mentally or physically to bring more and more dowry even after the marriage. When demands for dowry is not completed, women are tortured, beaten, even murdered. But this act helps to encourage other women to raise their voice against it, as there is strict punishment against the dowry. तो यहाँ दहेज निषेध अधिनियम 1961, जिसके तहत भारत में दहेज जैसी समस्या जो आज भी देखने को मिलती है, लोग छुपकर या एक सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर ही दहेज देते हैं, लेते हैं, या चोरी छुपे इस तरह के काम को अंजाम दिया जाता है। और ये कह सकते हैं कि इस तरह के हालातों में महिलाओं को कई बार शारीरिक मानसिक उत्पीड़न सहन करना पड़ता है। कई बार इसके कारण महिलाओं को जला दिया जाता है, यहाँ तक कि उनकी हत्या तक कर दी जाती है। तो इस बुराई को रोकने के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉ इस एक्ट के तहत बनाए गए हैं और अब महिलाएं किसी भी तरह की घरेलू हिंसा या दहेज उत्पीड़न को लेकर आवाज़ उठा सकती है। उनके फेवर में, उनके सपोर्ट में काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल हैं। Maternity Benefit Act 1861. This act regulates the employment of women and maternity benefits mandated by the law. It states that a woman employee who has worked in an organization for a period of at least 80 days during the 12 months preceding the date of her expected delivery is entitled to receive maternity benefits, which includes maternity leave, nursing breaks, मेडिकल अलाउंस etc. तो मातृत्व लाभ अधिनियम 1861 के तहत यह अधिनियम कानून द्वारा अनिवार्य महिलाओं और मातृत्व लाभों के रोजगार को नियंत्रित करता है, जिसमें कहा गया कि एक महिला कर्मचारी जिसे 12 महीने के दौरान कम से कम 80 दिनों की अवधि के लिए एक संगठन में काम किया है, उसकी अपेक्षित डिलीवरी की तारीख मातृत्व लाभ प्राप्त करने की हकदार होंगी, जिसमें मातृत्व अवकाश, नर्सिंग ब्रेक, चिकित्सा भत्ता आदि सभी शामिल किए गए हैं। Medical Termination of Pregnancy Act 1971. The act came into effect in 1972 and it was amended in 1975 and 2002. The aim of the act is to reduce the occurrence of illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity. It, clears, it clearly states the conditions under which a pregnancy can be ended or abortion and specifies the person qualified to conduct the same. Sexual Harassment of Women Act, Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013. It ensures women's safety at workplace. This act seeks to
protect them from sexual harassment at their workplace of any profession. 36% of Indian complaints companies and 25% among MNC are not complained with the Sexual Harassment Act according to a data of November 2015 reports. तो मेडिकल प्रेगनेंसी एक्ट 1971 यह अधिनियम 1972 में लागू हुआ। 1975 और 2002 में इसमें कई तरह के संशोधन किए गए। इसका उद्देश्य अवैध गर्भपात और मृत्यु दर जो शिशु की हो जाती है इसके कारण उसको कम करना है। यह स्पष्ट रूप से उन स्थितियों को बताता है जिसके तहत गर्भावस्थाओं को समाप्त किया जा सकता है, गर्भपात किया जा सकता है और समाज में जो आचरण देखने को इस तरह का मिलता है उसको रोका जा सके। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 यह कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम उन्हें अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने का प्रयास करता है। नवंबर 2015 की रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार भारतीय कंपनियों के 36% और एमएनसी के बीच 25% यौन उत्पीड़न अधिनियम के साथ शिकायत नहीं कर रहे। तो ये गिरावट, ये कमी बता रही है कि किस तरह से एक्ट्स ने वुमेन के साथ होने वाला जो क्राइम था उसको काफ़ी हद तक रोका है। National Commission for Women Act 1990. The National Commission for Women is a statutory body of the Government of India established in January 1992. Lalita Kumaramangalam was appointed its chairperson in 2014. The NCW represents the rights of women in India and provides a voice for their matters and concern. The National Commission for Women Act targets to improve the status of women and work for their economic empowerment. तो जहाँ राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 से कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है जिसे जनवरी 1992 में स्थापित किया गया था। ललिता कुमार मंगलम को 2014 में इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। एनसीडब्ल्यू भारत में महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है और उनके मामलों के लिए आवाज़ उठाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए लक्ष्य बनाया है और उनके आर्थिक रूप से उनको सशक्त बनाने के लिए भी कार्यरत है। इक्वल और वी कैन से इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976. दिस एक्ट प्रिवेंट्स discrimination in terms of remuneration. It provides for payment of equal recompense to man and women worker. तो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 यह अधिनियम पारिश्रमिक की दृष्टि से भेदभाव को रोकता है। यह पुरुष और महिला श्रमिकों को समान रूप से भुगतान प्रदान करने के लिए बनाया गया है ताकि आय के आधार पे, श्रम को आधार पे किसी तरह का कोई भेदभाव ना देखने को मिले। The Indian government has also recognized women issues and their contribution to the country economy. There are some positive steps taken by the government for women empowerment. The first one is Beti Bachao, Beti Padhao. This is a social campaign aimed at eradication of female crime and raising awareness on welfare services intended for young Indian girls. The Save the Girl and Child movement was launched on 22nd of January 2015. It is a joint initiative run by the Ministry of Women and Child Development, the Ministry of Health and Female Welfare, and the Ministry of Human Resources Development. Beti Bachao Beti Padhao. The scheme was launched with an initial funding of 100 crore. It mainly targets the cluster in Uttarakhand, Bihar, Uttar Pradesh, Punjab, Delhi and Haryana. तो भारत सरकार ने जो कदम उठाए उनमें से महिलाओं के मुद्दों और देश की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को मान्यता दी। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा कुछ सकारात्मक कदम उठाए गए जिनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक सामाजिक अभियान है जिसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन या इस तरह के अपराधों को रोकना है। सेव द गर्ल चाइल्ड आंदोलन 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक संयुक्त पहल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह स्कीम 100 करोड़ रुपए की शुरुआती फंडिंग के साथ शुरू की गई थी जिसका मुख्य रूप से जिसको उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के समूहों को लक्षित करता है। The government of India has taken up an initiative to promote Beti Bachao Beti Padhao and many programs has been organized to promote Save Girl Child and to educate girl child
since January 2015. The campaign has also received support from the Indian Medical Association. तो भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बढ़ावा देने के लिए एक पहल की, जिसमें जनवरी 2015 से सेव गर्ल चाइल्ड और एजुकेट गर्ल्स चाइल्ड को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए, ताकि गर्भपात के दौरान जो बच्चों को मार दिया जाता है, शिशु की हत्या कर दी जाती है या उनकी पहले ही जांच की जाती है, इसके अलावा जो एजुकेशन है महिलाओं की, गर्ल्स की, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट सरकार की ओर से इसके तहत किए जाते हैं। इस अभियान को इंडियन मेडिकल से भी काफ़ी समर्थन मिल रहा है। देयर इज़ वन मोर स्कीम, वन स्टॉप सेंटर योजना, जहां लोकप्रिय रूप से सखी के रूप में जाना जाता है। इसे 1 अप्रैल 2015 को निर्भया फंड के साथ शुरू किया गया था। वन स्टॉप सेंटर 24 घंटे की हेल्पलाइन के साथ एकीकृत एक छत के नीचे हिंसा के शिकार लोगों के आश्रय, पुलिस डेस्क, कानूनी चिकित्सा और परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत के विभिन्न स्थानों पर स्थापित किया गया है। द टोल फ्री नंबर 181 for that. Working women hostels. The objective of the scheme is to promote the availability of safe and conveniently located accommodation for working women with facility for their children wherever possible in urban, semi-urban or even rural areas where employment opportunities for women exist. सो ये कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके तहत महिलाओं को सशक्त बनाया गया। वहीं भारत सरकार द्वारा कई ऐसे कानून संविधान में हैं जो महिलाओं के खिलाफ हो रहे गलत को रोकते हैं, उनके लिए सज़ा का प्रावधान करते हैं और महिलाओं को मोटिवेट करते हैं कि वो किसी भी गलत के खिलाफ आवाज़ उठाए। बट स्टिल वाई वी डोंट हैव द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इफ़ यू टॉक अबाउट, दैट इज़ द कंक्लूजन। देयर आर सो मेनी लॉज एज वेल एज सो मेनी गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर वुमेन टू मेक देम empowered, but it is necessary to understand they that there are so many laws to protect them from any wrong action against women, as well as so many government schemes to make them strong, self-dependent, or to provide fundamental support. Only if they are aware of these rights they can raise their voice. They stand against any wrong action rather than tolerating. Women need to give befitting reply in case of any injustice, as well as they can take the benefits that is provided by the government by many schemes. But for there should be awareness. So we can say that we can really bring women empowerment with the efforts by government, with the laws, and there are many schemes. तो जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कानून हमारे देश में मिलते हैं। उन कानूनों को इम्प्लीमेंशन भी मिला है, साथ ही साथ सरकार कई तरह की योजनाओं के जरिए उनको उनका स्तर उठाने की कोशिश करती है। लेकिन फिर भी हम जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, आशा के अनुरूप जो रिजल्ट पाना चाहते हैं, वो हमें देखने को नहीं मिलता। इसका कारण क्या है? तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ तक हम समझते हैं, महिलाओं के लिए जागरूकता होना, उनके अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता होना, ताकि वो अपने खिलाफ हो रहे अन्याय गलत के लिए आवाज़ उठा सके, सरकार का दरवाज़ा खटखटा सके, कानून का सहारा ले सके, या अपने खिलाफ हो रहे किसी भी तरह का गलत एक्शन, गलत ये कह सकते हैं उनके साथ हो रहा अत्याचार, उत्पीड़न या हिंसा, उसके खिलाफ महिलाएं आवाज़ उठाएं। उसके लिए उनका जागरूक होना पहले आवश्यक है, ताकि वो मिल रही सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकें और कानून को अपने प्रोटेक्शन के रूप में काम में ले सकें। साथ ही साथ योजनाओं का फ़ायदा उठाने के लिए भी उन्हें अवेयर होने की ज़रूरत है, ताकि सरकारी योजनाओं के ज़रिए वो खुद का स्तर उठा सकें और उनको अपने लाइफ में एक मदद के तौर पे प्रयोग कर सकें। और यहाँ सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यही है कि सरकार अपने लिए एफर्ट कर रही है उनके लिए, साथ ही साथ कई तरह के लॉज भी हैं, लेकिन फिर भी जो ये डिस्क्रिमिनेशन या वुमेन एम्पावरमेंट हमारे देश में पूरी तरह देखने को नहीं मिलता है। इसका मुख्य कारण ये कि हमें सबसे पहले उनके लिए स्टैंड होना होगा। सोसाइटी को उनको सबसे पहले फ्रीडम देनी होगी। उन्हें अपने घरों में, उन्हें अपनी समाज में, उन्हें अपनी कॉलोनीज़ में एक इक्वल और इक्वलिटी पे लाने की कोशिश करनी होगी। उनको शुरुआत से ही फ्रीडम ऑफ डिसीजन देना होगा, ताकि वो नेतृत्व कर सके, शुरू से ही निर्णय ले सके अपनी एजुकेशन को लेकर, अपने सब्जेक्ट्स को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर। क्योंकि जब उन्हें सबसे पहले उनको घर से स्वतंत्रता मिलेगी, घर से उनको एक एम्पावरमेंट मिलेगा, घर से ही उनको सशक्त बनाया जाएगा और समाज में उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन जैसी चीज़ें एक छोटे स्तर से उनमें आएगी, उनको दी जाएगी, तभी भारत में एक रियल वुमेन एम्पावरमेंट लाया जा सकता है। क्योंकि इसकी शुरुआत बिल्कुल छोटे से लेवल से होगी।
जहाँ कानून अपनी जगह हैं, जहाँ स्कीम्स अपनी जगह हैं, वहीं जब तक समाज में परिवर्तन नहीं आता, जब तक समाज उनको खुले तौर पे फ्रीडम नहीं देता, उन्हें स्वीकार नहीं करता, उनको सारे अधिकार नहीं देता और उसको कह सकते हैं कि एक हैप्पीनेस के साथ एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक रियल वुमेन एम्पावरमेंट लाना मुश्किल है। क्योंकि समाज वो है जहाँ लोग अपनी ट्रेडिशन, अपने कस्टम, अपने कल्चर के अनुसार चलते हैं, और अगर वो इस तरह का चेंज लाते हैं, अगर वो इसको इसमें खुलापन लाते हैं, अगर हमें अपने समाज में ही महिलाओं के लिए आदर, उनके लिए सम्मान, उनके लिए आज़ादी, उनके लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उनके लिए कार्य के चुनाव की स्वतंत्रता, उनके लिए शिक्षा की स्वतंत्रता, और इस तरह की फ्रीडम जब उन्हें अपने घर, अपने समाज, अपने शहर में मिलेगी, तो आगे नेशनल लेवल पर एक रियल ह्यूमन एम्पावरमेंट को लाया जा सकता है। विद ऑल दिस काइंड ऑफ एस्पेक्ट आई वुड लाइक टू फिनिश माई टॉपिक। विल मीट टुमारो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।